The Best Writer award goes to Arunansh Bhatt for Ye Kya Ho Gaya. So when you were writing about this movie, so what was your first image when it came? Means what idea hit you? First idea was this only, like, what if we swap everything? Like, everything, like, for example, everything that is expected from women in households, not just Indian households, because I've traveled to, like, Middle East also, and then I grew up in West Indies, like in South America. So, all of these things were there across the globe, like gender roles, like women were assigned roles like cooking and domestic work and everything, and men who used to go out and like work and everything, make the money. So this always, like, what if I flip this? What if I flip this in every aspect? Not just in like the household stuff, but also the thinking of it also. Like, men themselves are placed in the supporting roles now. So I think that's how it started. Like, I was having a conversation with a very good friend of mine, and she's also an actor in the film. So we were discussing patriarchy. We were discussing how that world would be, like if everything is like reversed. So that's how it got. I got inspired to write it. The best thing I liked about the film was like when we were doing a swiping, generally when we do this kind of thing कि swipe कर रहे हैं वो कर रहे हैं, we make it little caricaturish. जो rawness है, Hmm. we remove that. So in your film, the rawness Hmm. was kept. Means did you had Yeah. like कि नहीं, you want to do it like a Bollywood style or whatever trending was going, means जब वो चलता था कि when we do a swiping role, so we put a hand gesture or something like this rather than keeping it in raw. Yeah, no, I actually, matlab, I didn't think of this like this. I was thinking like it should be entertaining, like entertaining in a way where not it's not like, as you said, caricaturish, but like it should be like, for me when I watch a film, like it's the message of the film should not overpower the film. Ki I'm trying to give a message, or like, this, I figured this out. You have to learn this from the film. I don't think that any films in general can change anything much. Um, you know, so I was thinking more of like, okay, keeping it raw, keeping it real, but keeping it like engaging, like from start to end. Because even if you're saying the most noble thing in the world, but if it's not engaging to an audience, then half of the audience will leave. They won't care. Okay, fine, yeah, fine. So yeah, and I think a lot of it came from the actors, because it's a very film is like a play, on like a theater play. So the chemistry of the actors, the way they are, like, it has to look like they know each other for years. So I think a lot of credit there would be to the actors, the way they did it. Yeah. So while performing also actors might have that caricature texture. It may come. So what was your workshop to maintain that it should be purely rawness, not being any caricaturist or something like this? So honestly, the way I cast actors also is like, I have an image in mind, and like a characteristic of in mind, and I usually like to cast actors who have something in common with the character, like something in common. Like my lead character, which is played by Arfi Lamba. So he has this very like, जो दिल में है वो बोल देंगे, मतलब, like he's very pure like that. So he's not, it's like जो अंदर है वो बोल दिया, चाहे वो अच्छा हो चाहे जो भी हो. So that really kind of connected with me. So I was like, okay, do it like this, do it in that way, like the way you do in real life, but keep it submissive, keep it, lower your tone, because that is how we can switch the roles. So I think these like smaller characteristics जो हर एक actor में एक अपनी अपनी होती है ना, like all of us, not just actors, all of us, you and I, everyone has that some unique things, which is just जिस तरीके से you talk, जिस तरीके से you sit or you walk, one of those aspects, if it matches with my character, then okay, fine, let's do it. So I think that's just my process. I mean, not necessarily be the only process, but yeah, for this film, it really helped like that, to get people from. That's how it became real. Because most of them, a lot of the characteristics are from real life, so it looks real. You know, so yeah, that's how it was. It was a fun process. So right now coming to the white and black technicality.
So means what was in your mind, your style, cinematic style for doing it black and white? I think we didn't. The big reason to do it in black and white was the last sequence where it just became more disturbing to watch. Like it just went with the title. Like ye kya ho gaya? If it's in black and white, then you kind of get a feeling where it's okay. Maybe it's a story of 1950s or maybe a story in the future. Like it has that very dystopian kind of a ki, like just adds to the feeling of mystery. Like anyone who's watching the film, वो 5-10 मिनट के बाद समझेगा कि ये क्या हो रहा है. लाइक ओ अभी स्वैप हो गया है. So I think the black and white texture was adding to it. And then when he wakes up in the end, so then it adds more to it. Ki okay, fine, okay, this is the real world Yes, where it kind of changes to the color, like okay, that's the reality now we are facing. दुनिया में आए हैं. उसके पहले तो आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ क्रिएटिव चॉइस, लाइक नॉट अ टेक्निकल चॉइस एज सच कि हम इसको टेक्निकली ऐसे करेंगे. क्रिएटिवली ऐसा हो गया था कि लाइक हाँ वो ना एसेंस में मिस्ट्री और आ जा रही थी उसमें कि लाइक इट बिकम्स वेरी. एंड आई रिमेंबर इट देयर वाज अ स्क्रीनिंग समवेयर, आई थिंक इट वाज इन ऊटी इन तमिलनाडु समवेयर, एंड वन ऑडियंस मेंबर हैड रिटन दिस ऑन हिज शीट that the black and white was adding like so much disturbance to the visuals. It's so disturbing to see this as a man. He was a man, so disturbing to see the reverse of it. So I guess yeah, that it was just that कि यार थोड़ा सा और इसमें मिस्ट्री ऐड हो जाएगी. So it was during the shooting of the film or after the entire filming? After during the film, I didn't think of it. Then after then we digitally did it. We didn't. Luckily, a lot of the shots, most of the shots can be done to black and white because the lighting helped. Somewhere I felt like it was supposed to be like that. So जब हमने कलर में भी शूट किया था ना, तो वो जब ब्लैक एंड व्हाइट में उसको करा हमने लाइक कलर ग्रेडिंग में, तो उसमें रियलाइज हो रहा था कि जो लाइटिंग करी थी हमने कलर में ना, वो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही है ब्लैक एंड व्हाइट में भी. So वो हमारा प्लान नहीं था, it just happened. I think it's just none of us thought of it like that. But वो हो गया, it was meant to be like that, I guess. If we Yeah. say as it was a short film and if we take it to the feature film, अगर इसी को हम लोग feature film में कर लेते हैं, so what are the other aspect we can see in this film? फीचर फिल्म में आई थिंक देन आई वुड हैव टेकन इट लाइक थोड़ा धीरे धीरे और बिल्ड करता. अभी तो बहुत कम चीजें दिखाई थी. मतलब कि फैमिली डायनेमिक्स तो दिखाई नहीं. मतलब कि हस्बैंड की साइड की फैमिली डायनेमिक्स जो होता है ना, मदर इन लॉ डॉटर Yes, yes, फादर yes. इन लॉ, तो हो जाएगा. उनके अपने कलेश हो रहे होंगे उस तरफ से. लेकिन कि अरे उसने जो है तुम्हारे कल रात में, कल वो कितने बजे घर आया, तो उस मान लो इट्स अ वर्क. सो देन वो कितने बजे आया, 10 बजे आया. अरे तुमको बताना चाहिए ना कि इतनी लेट नहीं टहलते ऐसे, मतलब सेफ नहीं है. सो आई फील लाइक हाँ वो पेरेंट्स वाला एंगल बहुत बड़ा एंगल होता है. आई थिंक द स्टोरी वुड हैव बीन, नाउ दैट यू आस्क आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो स्टोरी ना उस एंगल से आ जाती है कि पेरेंट्स के पीओवी से. कि क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है ना हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इन मैरिजेस, पेरेंट्स प्ले सच अ बिग रोल. सो आई थिंक दैट वुड बी देयर. एंड देन द चाइल्ड्स स्टोरी, लाइक जो उसकी जो एक लव स्टोरी चल रही थी बाहर, वो ही पकड़ा जाता बाद में. और आई थिंक उसी में जेंडर रोल्स खेल सकते थे. आई थिंक आई वाज प्रॉब्ली दैट. सोचा नहीं मैंने इस बारे में. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक आई विल टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट कि ये बड़ी 2 घंटे की होती तो क्या करता है इसमें मैं. बट आई गेस या दिस वाज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. पेरेंट्स को जरूर लाता मैं इसमें. इनफैक्ट और ज्यादा वो कर सकते थे. बाकी जो गेस्ट्स भी आए हैं ना, वो लोग भी बाद में फिर आपस में उनकी स्टोरीज चल रही हैं कि अरे वो कैसा सा था. जैसे होता है ना इंडियन सोसाइटीज में गॉसिप्स बहुत होते हैं, तो कोई आके बोल दे कि अरे वो खाना तो बेकार ही बनाया था, जबरदस्ती उसकी बीवी जो है उसको ऐसे देखती है, पता नहीं क्या है देखा उसमें, ऐसा जो भी. सो देन इट्स अ बिग फैमिली ड्रामा, लाइक एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा. बिकॉज स्क्रिप्ट में काफी पॉसिबिलिटीज थी कि उसको काफी जगह पे प्ले किया जा सकता था. इट हैज मेनी वेज टू ओपन. नो डाउट, नो डाउट यार. आई थिंक स्क्रिप्ट की पॉसिबिलिटी के साथ साथ वही हो जाता है कि फिर फिल्म मेकिंग इज एन एक्सपेंसिव मीडियम. सो कहाँ तक हम कैमरा रेंट कर सकते हैं. अच्छा 2 दिन का रेंट है, ओके. तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर भी किया था फिल्म को, इस वाली फिल्म को, बिकॉज आई न्यू दैट आई हैड अ हाउस एंड आई न्यू दैट आई वांटेड टू से दिस. तो रिवर्स इंजीनियर करके कैसे हम बजट्स में खेल सकते हैं ना, कि इतने बजट में हम इतनी फिल्म बना दिया हमने,
तो तो हाँ, मैंने तो एक गजल का भी सीक्वेंस रखा था मैंने इसमें, कि यूजुअली आपने देखा होगा ना, वो बहुत सारे अंकल्स जो होते हैं वो कमरे में जब उनको चढ़ जाती है तो एक आध गजल लग जाती है, मेहंदी हसन अलग की ही लग जाएगी, वो। का पूरा सेशन चल रहा होगा, वो कोई गा रहा है अपना गा, मतलब इसमें तो वाइब्स होती है तो वो अपनी गा रही हैं, एंड किसी हस्बैंड से आके जो है कुछ गलती हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कुछ गरम गिरा दिया उसने, तो तुरंत उसका हाथ वैसा हो गया कि उस पे हाथ उठा दिया या कुछ कर दिया, सो लॉट ऑफ थिंग्स दे एंड इट इज सो मच लाइक एवरी फैमिली इज डिफरेंट, सो डेफिनेटली यार, मतलब ये हो सकता है आगे जाके इस पे कुछ और बड़ा बनाए. Cool. So while building each character means what was your R&D की हर कैरेक्टर को किस तरीके से किया जाता है, मींस उसको कैसे डेवलप किया गया? यार R&D was honestly just real life. All of these people I have seen in real life. अभी रिवर्स में देखा है, मतलब मैंने हस्बैंड के रोल्स में वाइफ्स को देखा उसमें, हाँ। बट एवरीथिंग इज फ्रॉम रियल लाइफ, लाइक एवरी डायलॉग दैट इज सेड इन द फिल्म आई हैव हर्ड इन लाइक रियल लाइफ, कि किसी की लड़की को जल्दी घर से भेज दिया कुछ लाने के लिए, उसी पे ही कले मतलब रात में मैटर हो गए कि उसको क्यों भेज दिया, ऐसा ऐसा. सो आई थिंक ऑल दी R&D वॉज रियल लाइफ ओनली, मतलब कैरेक्टर वाइज तो मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग अपनी जिंदगी में जो लोगों को मैं जानता हूँ ना, उन्हीं पे बेस किया है मैंने कुछ कुछ चीजें, कि इनको ना इस तरीके से करेंगे, इनको इस तरीके से करेंगे. तो ये सिर्फ मुझे पता है, बिकॉज अगर मैंने घर पे बता दिया किसी को तो तो वो अलग मैटर प्रॉब्लम हो जाएंगे कि ये हमारे, and then people become conscious around you also, like if they know that, and as a director, as a not just as a director, as an artist, generally as an artist आप जो चीजों को ज्यादा नोटिस करते हो as compared to probably non artists, तो कॉन्शियस हो जाते हैं लोग कि अरे इसको बताएंगे फिर ये कुछ बना देगा उस पे और ऐसा ऐसा. सो आई डेंट वांट दैट टू हैपन, तो वो मैंने फिर, सबको लगता है कि ये सब जो है उनकी कहानी है, किसी और की कहानी है, कि ऐसा ऐसा, सो उनको कभी ये रियलाइज नहीं होगा कि ये उनकी ही आ रही है, अब उनके अंदर से आ रही है. सो या आई थिंक रिसर्च तो फुल ऑन रियल लाइफ. सो वाइल ऑल्सो एक फिल्म थी जूस, की एक फिल्म है जूस, शॉर्ट फिल्म, इट हैज शिफाली शाह आई थिंक, वो फिल्म मैंने देखी थी, सो दैट रियली डिस्टर्ब्ड मी. हैव यू सीन द फिल्म? आई हैव नॉट सीन दैट फिल्म येट। अच्छा, तो उसमें ना वो ये एक घर का डिनर हो रहा होता है, उसमें उसमें नॉर्मल लाइफ दिखाई है, मतलब और बहुत डार्क फिल्म है, मतलब मेरी तो थोड़ी लाइटर टोन पे मैंने रखा था. दैट वाज आल्सो अ बिग इंस्पिरेशन की नाउ व्हाट इफ आई रिवर्स, सो या. सो वाइल या राइटिंग द डायलॉग्स, सो कितने ड्राफ्ट लगे टू मेक इट टू द फाइनल ड्राफ्ट इस चीज को पूरा करने में, बिकॉज इट वाज नॉट लाइक कि ये एक बार में लिख के ही ये फिल्म एक वन शॉट में ही बन गई। सो हाउ मेनी ड्राफ्ट डिड यू इसके लिए? भाई इट्स अ वेरी लाइक, आप मतलब पता नहीं सुनने में अजीब लगे, बट मैंने दो फिल्में बनाई हैं आज तक, दो शॉर्ट फिल्म्स और म्यूजिक वीडियोस बहुत बनाए हैं, मतलब आई एम ऑल्सो म्यूजिशियन, सो गाने और वो सब अलग हो गया, बट फिल्मों की बात करें तो दो फिल्में हैं. दोनों फिल्में जो अभी हैं स्क्रिप्ट टू स्क्रीन, वो ये पहले ही ड्राफ्ट है. क्या बात कर रहे हो यार, फर्स्ट ड्राफ्ट में? क्योंकि तो मतलब दिमाग में ना वो एक डेढ़ महीना दो महीना चल रहा होता है, तो व्हेन आई एम पुटिंग इट ऑन पेपर, देन 90% ऑफ इट इज 99% ऑफ इट इज लाइक कि पहला वो कि यही लिखा था पहले उसमें. सो आई थिंक पहले ही ड्राफ्ट से वो हो जाता है कि, क्योंकि क्या होता है ना, फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद पहला ड्राफ्ट जो आपका आएगा ना वो सबसे रॉ आता है, मतलब सबसे नेचुरल जो आपको कहना था. उसके बाद आपके अंदर की टेक्निकलिटीज आ जाएंगी कि अच्छा इसको शूट कैसे करेंगे, इसको ये कैसे, इसमें पैसे लगेंगे, इसमें कैसे लगेंगे. तो इस वाले में भी और पिछली वाली शॉर्ट फिल्म में भी यार वो पहला ही है ब्रो, मतलब जो पहले लिखा था वही कर दिया. आई डोंट नो, शायद आगे जाके और ड्राफ्ट्स लिखूं. मेरा पेशेंस बहुत कम है एक्चुअली इस मामले में, कि अगर मुझे अच्छा लग गया है तो मुझे लगता है कि फिर अगर मैं ज्यादा सोचूंगा तो मैं बिगाड़ ना दूं उसको, यू नो वो भी एक हो जाता है उसमें. सो या आई थिंक इसका तो पहला ही ड्राफ्ट था यार ऑनेस्टली. सो जब ये फिल्म पहले मीन्स आपने दिखाई, अपने ऑब्वियसली अपनी फ्रेंड्स फैमिली इन सबको दिखाया होगा, तो उनके तरफ से क्या रिएक्शन था? अच्छा ही, मतलब यार इसमें भी एक एक मेरी एक वो चीज है, पता नहीं वो कैसी लगे सुनने में, बट मैं नहीं दिखाता किसी को. मैं सिर्फ इस केस में ना, मतलब मुझे लगता है कि रिलीज होगी जब, तो हाँ। देख लेंगे. बिकॉज जब आप फिल्म बनाते हो ना, तो उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हो ना, आपका वो लाइक इसमें मेरे आई थिंक इट टुक मी
3 to 4 months to complete the film totally. तो 3-4 months of just doing this and not doing anything else, तो आप बहुत अटैच हो जाते हो उससे. तो उस टाइम पे फिर मैंने दिखा था किसी को, बिकॉज देन आई विल नॉट टेक इट. नाउ इफ यू क्रिटिसाइज द फिल्म, लाइक नाउ इफ यू टेल मी कि हाँ ये चीज हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं ना, तो आई विल लुक एट इट एज लाइक हाँ हाँ नहीं करेक्ट है, इसको ऐसे कर सकते थे. वो टाइम पे ऐसा नहीं होता है, वो टाइम पे यू आर वेरी डिफेंसिव. तो मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि आई शो इट टू द पीपल हु ईदर कैन टेक इट फॉरवर्ड समवेयर. लाइक अगर फेस्टिवल्स की बात हो तो फेस्टिवल्स पे बेच दिया, और शोइंग इट टू प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, लाइक दीज पीपल, कि अच्छा चलो इनको अगर नहीं भी अच्छी लगी तो इनके उस पर मैं सोचूंगा कि चलो ठीक है. देयर इज अनदर थिंग ना, इफ आई शो इट टू समवन हु इज नॉट फ्रॉम फिल्म्स और इन जनरल, तो अगर आप ये बोलोगे ना कि फीडबैक दे दो, तो वो फिर उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसको आपको कुछ बोलना पड़ेगा, बिकॉज आपने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. सो देन दैट पर्सन विल वॉच इट लाइक अ रिव्यूअर एंड नॉट एज एन ऑडियंस, यू नो. सो यही सब मेरा लॉजिक चलता है यार दिमाग में, तो मैं नहीं दिखाता. मुझे लगता है मैं आगे जाके भी अपनी फिल्म जो है ना, मतलब सिर्फ अपने लोगों को दिखाऊंगा, मतलब जो प्रोड्यूसर हो गए, आई थिंक उसके अलावा तो, मतलब a lot of my actors, they saw the film for the first time at a festival, कि okay this is the film, so I guess yeah, that's just that. हो सकता है आगे जाके चेंज हो, बट इनिशियल तो हाँ यार यही था. सीधे फेस्टिवल पे ही मैंने रिस्पॉन्सेज देखे हैं बस, कि अच्छे ही लग रहे हैं. राइट नाउ अभी तो काफी फेस्टिवल्स में भी इसको काफी अच्छे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं. तो राइट नाउ यार व्हाट ये माइंड रिगार्डिंग दिस फिल्म? राइट नाउ, दिमाग में क्या चल रहा है कि जब ये फेस्टिवल्स में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये कर रही है, आगे इस फिल्म को लेके कुछ सोचा है कि व्हाट यू आर प्लानिंग विद इट? yeah, I think planning the next film, I guess, though people with the people that I've gotten to be in touch with this film, I feel like it's out, like, उतना ना उसकी अपनी जिंदगी चल रही है. मैंने तो ऑनेस्टली सोचा भी नहीं था कि इट विल एवर गो टू एनी फिल्म फेस्टिवल, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ फेस्टिवल फिल्म, लाइक इफ you've seen the film, so it's not like a hardcore festival film where it's like okay, those kind of films जो थोड़ा स्लो होते हैं, थोड़ा उसमें, दोस काइंड ऑफ स्लो फिल्म्स, तो उस तरीके के जोन में है नहीं वो. तो मुझे तो ऑनेस्टली जब न्यूयॉर्क का भी सिलेक्शन आया था, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल का, तो आई वॉज जस्ट आई थॉट कि किसी गलती से आ गया ये मेरे पास, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता. ये उस तरीके की फिल्म है, वो लेते ही नहीं है जिस तरीके की ये फिल्म है. सो ऑनेस्टली आई एम लाइक, एंड देन दिस लाइक फॉर एग्जांपल रीबॉर्न इंडिया में जब हुई एंड देन इट वन ऑल्सो. सो मुझे तो लग रहा था, मैं याद है कि माई डीओपी वॉज देयर सिटिंग जब भी ना वहां पे हुआ था, कौन सा वर्सो वेडागुंबा थिएटर. तो मेरे बगल में जो मेरा डीओपी बैठा था, तो जब व्हेन वी वन द बेस्ट राइटर, तो आई टोल्ड हिम कि यार इतनी अच्छी बना दी क्या हमने, कि मतलब ऐसा हमने क्या बनाया है, मतलब. सो आई फील लाइक समवेयर इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट इट्स वेरी हम्बलिंग ऑल्सो, कि यू नेवर नो किसको अच्छी लग जाए किसको नहीं अच्छी लग जाए. आप बस अपने दिल से बना सकते हो. तो वो सो चीज लेट्स सी वेयर. दिख भी रही है ना, बिकॉज जो चीज हमें दिख रही है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुतों ने ट्राई किया हुआ है, हमने बॉलीवुड में भी देखा है, हॉलीवुड में भी देखा है, हर जगह देखा हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा हुआ है. लेकिन इसमें सीन क्या है कि लोग मेनली जब स्वाइप कराते हैं तो उसमें बहुत कैरिकेचरिश बन आ जाता है, जो कि इस फिल्म में नहीं था. इसमें काफी रॉनेस थी कि ओके, एक इंसान जब स्वाइप कर रहा है, उनकी ऑथोरिटी, जो उनका बॉडी लैंग्वेज, जो स्ट्रक्चर है वही रहेगा, लेकिन वो ऑथोरिटीज खाली चेंज हो रही है. सो वो चीज. एग्जैक्टली, लड़कों को पीरियड्स होने लगेगा, वो हाँ. नहीं होगा. हाँ, ऑब्वियस. लड़के तो फिजिकली वो लोग सेम है, बट इधर से अलग हो गए, इधर से रोल्स स्विच हो गए. जो मैनमेड ऑथोरिटीज है वो चेंज हो रही है, जो नेचुरल जो आया हुआ है उसको चेंज नहीं कर रहे, उसमें हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन नहीं डाल रहे हैं. वो वही है अभी, इवन लाइक इन दिस केस, इफ मतलब जैसे हमारी रेगुलर सोसाइटीज में होता है ना, कि हस्बैंड इज द वन हुज लाइक वाइफ को बोलता है कि चलो बेड में आओ, यू हाँ. नो बट जनरली स्पीकिंग, बट हियर इट्स रिवर्स, इट्स लाइक द वाइफ इज सेइंग कि चलो आज मूड है. तो इट्स जस्ट दैट, स्मॉल दिस, इधर से इधर हो गया, स्विच हो गया. हाँ सो लाइक दिस, जब ये प्रोजेक्ट लेके आप प्रोड्यूसर्स के पास जा रहे थे, ये जा रहे थे, तो व्हाट वाज योर पिच एंड हाउ डिड यू कन्विंस देम? वो क्या आइडिया था? यार, ये वाली फिल्म में तो मैं बच गया, बिकॉज माई मदर इज द प्रोड्यूसर. ओके. सो तो मैंने तो कहा कि कुछ भी नहीं बोला यार, मैंने बस ऐसे ही बोला ऐसा बनाने का प्लान कर रहा हूँ, एंड आई थिंक शी कनेक्टेड इट ऑन अ पर्सनल लेवल ऑल्सो. सो शी इज लाइक कि इसको कोई और नहीं बनाएगा, इसको तो हम ही बनाते हैं फिर, मेरा प्लान था कि मैं और शायद लोगों को पिच करूँ
और प्रोड्यूसर्स को, यू नो, बट शी इज लाइक नहीं, इसमें कोई और नहीं चाहिए, बिकॉज द मोमेंट यू इन्वॉल्व more producers, then there are more voices, you know, and वो फिर 100% creative control उस पे नहीं रहता है. आई नो इट्स अ थिंग ऑफ प्रिविलेज ऑल्सो, मतलब इस केस में तो 100% कंट्रोल अपने पास था. तो मैं बहुत लकी था इस मामले में कि माई मदर बिकेम द प्रोड्यूसर ऑन दिस. सो कहीं पिच विच कुछ नहीं, मतलब एक वॉक करा और मैं बोला ऐसी फिल्म बनानी है. तो मैं उनको ये भी बोल रहा था कि मैं इनको यहाँ पिच कर, मैं इसको यहाँ सुनाऊंगा, और यू नो लाइक मैं लीड एक्टर उसके थ्रू कहीं और सुनाऊंगा. तो उन्होंने जब कहानी सुनने बोला कि नहीं, क्यों सुनाना है, ये हम ही बनाएंगे, तुम दूसरी कहानी सुना दो उधर जाके. तो मैं लगा फिर सही है, सॉर्टेड है फिर तो या. वो प्रिविलेज आने के बाद डिड यू हैव क्रिएटिव फ्रीडम्स और मिल गई कि ये एक एज अ डायरेक्टर कि व्हेन समवन हु ट्रस्ट यू वो आपका प्रोड्यूसर बन जाता है, कि फिर आपको एक क्रिएटिव लिबर्टी मिल जाती है कि ठीक है मैं क्रिएटिव वाइज ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो वो कैसा एक्सेस था? बेस्ट था यार, मतलब मुझे तो, मतलब बेस्ट 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 केस सिनेरियो है ना ये तो, कि आपके पास लाइक यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग. ऑफ कोर्स इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, दैट यू डोंट ओवर स्पेंड और जबरदस्ती के खर्चे कहीं ना हो. इस फिल्म पर शूट किया था एक्चुअली, तो पहली बार शूट किया था तो एक दिन का ही मैंने शूट रखा था, और मुझे लगा था हो जाएगा. बट वो बहुत खराब शूट हुआ था, उसमें कुछ कुछ एक्टर्स भी, मतलब दे weren't able to, like the way I was imagining. आई मीन इनफैक्ट उनकी भी क्या गलती, मेरी गलती थी. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एज अ डायरेक्टर, यू नो. एक दिन पे तो नहीं कर सकते थे इसको, तो फिर से इसको रीशूट किया सेकंड टाइम पे, विच वॉज अ बिग कॉल, बिकॉज थोड़े पैसे तो लग ही गए थे. बट ये था कि यार अब बना रहे हैं, क्योंकि फिल्म तो एक ही बार एक्सपोर्ट होगी ना, मतलब एक बार बनेगी बस. तो मतलब कंट्रोल्ड बजट्स में, लाइक नेक्स्ट टाइम देन वी डिड सम अदर बजट कट्स, फूड बजट कट कर दिया, और मतलब अनफॉर्चुनेटली. तो मतलब यही था इस तरीके से. बट आई फील लाइक हाँ, क्रिएटिव कंट्रोल तो कोई कोई भी, मुझे कोई कुछ भी नहीं हुआ कि ये ऐसे करते हैं वो कैसे करते हैं. एंड माई मदर डिडंट इवन गो इनटू पोस्ट प्रोडक्शन एंड ऑल, मतलब उनको बस फाइनल देखना था कि फाइनल दिखा दो कैसा है. तो बाकी तो सही था, मतलब वो दी इट वॉज अ वेरी हैसल फ्री प्रोसेस, यू नो, एज वी से इट. या. हाउ वाज हैंडलिंग विद लाइक जो फर्स्ट शूट से सेकंड शूट जब फिर आप लोगों ने किया, सो एज अ डायरेक्टर व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट कि ओके ये गलती मुझे अब दोबारा नहीं दोहरानी है, कि इस टाइम सेकंड टाइम होने जा रहा है इट शुड बी माय परफेक्ट वे, कि अब मैं वो गलतियां ना दोहराऊं? I think one big thing was management. You know, मेरे side से to understand कि it's not easy to manage so many people. You know, because मेरी पिछली वाली short film में सिर्फ 2 actors थे. You know, and it was very like very less crew. I think 5 लोगों का crew था. But this time we had like more things. So I was kind of, first time I was not prepared on the mentally to able to manage so many people, so many actors in 2 days, in one day, that too. सो आई थिंक वो बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि एक दिन मैंने रखा था, तो वो थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर लिया था मैंने अपने, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम डायरेक्टिंग लाइक 13 एक्टर्स इन ऑन द सेट. सेट क्या, मतलब मेरा घर था बट वो सेट हो गया वो पूरा. तो आई थिंक दैट वाज अ बिग बिग मिस्टेक फॉर मी, कि मैंने अपने आप को ही ओवर वो कर लिया था कि हाँ हो जाएगा, टेकिंग इट लाइक कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा. सो बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द डायरेक्टर ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि अगर डायरेक्टर कॉन्फिडेंट है, सो देन दैट एनर्जी फ्लोज. And if the director is like not एक्टर्स के साथ confident, फिर टेक्निकल क्रूज भी थे, साउंड कैमरा वो or तो काफी बड़ा वो सेटअप फिर हो जाता है हैंडल करने के it लिए। is always your energy that goes into it. Like आपको बस ये सोचना है कि यार all these people are there, they are believing in you, you know, they are believing in like एक कहानी है जो ऐसी लिखी है, और बस भरोसा करके आए हैं उस चीज में. इंडी फिल्मों में तो बजट से ज्यादा भरोसा चलता है, you know. So भरोसा करके आए, and then I felt like I kind of let them down the first time because I was not that prepared. जल्दी शूट रख लिया था मैंने, शायद मुझे लगता था कि थोड़ा और कास्टिंग में मैं और ज्यादा टाइम लग, उस टाइम पे मेरा वो था कि बस फिल्म बनानी है, फिल्म बन जाए. बट वो नहीं आया कि अच्छी फिल्म बनानी है, और यू नो अपनी वॉइस इसमें नहीं खोनी चाहिए. सो आई फील लाइक देन द सेकंड टाइम आई टुक अ गैप ऑफ लाइक अ 1 month का गैप, रीरोट फ्यू सीन्स ऑल्सो. कुछ कुछ चीजें, अच्छा हाँ, एक सेकंड ड्राफ्ट हुआ था उसमें. टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा था ड्राफ्ट वाला, तो वो शूट के टाइम एक ड्राफ्ट और लिखा था, कुछ कुछ चीजें और डिटेलिंग थोड़ा सा और उसको क्रिस्प किया था. सो दैट हैपेंड. बट या आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. मतलब आसान नहीं होता, मैनेजमेंट इज अ वेरी टफ टफ थिंग.
तो जैसे व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन कि जैसे जो हम लोगों का मेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो होते हैं कि व्हेन जो फिल्म में दिखाया गया, सो व्हाट्स योर पर्टिकुलर ओपिनियन ऑन दैट, क्योंकि वो एक रात में तो चेंज होने वाला नहीं है, इट टेक्स टाइम। इवन वो शुरुआत हम बोल सकते हैं हो गई है, बट स्टिल वो ब्लैक क्लैश होते हैं, फिर वो आगे जाते हैं। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? Yeah, I feel really that everything starts with, first of all, um, identifying ki, or making yourself aware that there is something that needs to be fixed. You know, problem की awareness बहुत जरूरी है. Like I have a page on Instagram called Stranger Thoughts 2.0, and उस पे ना मैं I speak on patriarchy, I speak on in general feminism and on these issues, these gender equality issue, inequality issues. तो उस पे बहुत like a lot of people have started connecting on that page, you know, like I think 25-26,000 उस पे followers हो गए. So I feel like it's मैं अपने साइड से इतना कर सकता हूँ कि मैं बस बात कर सकता हूँ किसी चीज के बारे में, you know. So I feel like हाँ, right now as we speak it is better, definitely, but because it can be much better, you know, and it comes with अभी क्या बहुत ज्यादा डिवाइड भी हो गया है, लाइक पीपल, मेन एंड वुमेन में इतना बीच में लेयर्स आ गई है ना, मतलब एक दूसरे को समझने की जो बात होती है ना, वो कॉन्वर्सेशन ना बहुत वैसा हो गया है कि men want to win and women want to win. So it's less of let's, okay, what are you saying, okay, you're saying this but I feel this. Conversation जो होती है ना, वो थोड़ा, और मुझे लगता है सोशल मीडिया से ना और ज्यादा हम लोग डिवाइड हो गए हैं बॉक्सेस में. सो फ्रॉम माई एंड व्हाट आई ट्राई टू डू इज break that box on that page, you know. So far going well, I guess. Let's see, because एक इंसान से क्या मतलब, it's a thought. To reach till here it took decades and decades and centuries to be where we are right now. बट सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक वो होपफुली यही हो बस. So what are your future plans right now? Yeah, right now actually I have like I'm as I told you, I'm also a musician, so I have a song coming out on 25th. Okay. Yeah, I just shot a music video for it. So वो आ रहा है अभी, और I've written a feature and उसकी भी pitching चल रही है like right now with the studios and stuff. So I think बड़े plans में तो वो feature film ही है, like that is like we that's a big one, you know. So plans तो वही चल रहे हैं अभी. Yeah. Thank you, Anurush, for giving your time for this interview. We loved your film. It was really amazing that you have given your time and this, and you have sent those film and we have watched. It was a really great honor. Thank you very much for that. Thank you so much. Thank you so much.